Hello students, welcome again. So general test PYQs, top 100 MCQs. So question number 61. Which of the following are incorrect? Incorrect. Sin 0, 0 it's correct. Tan 0, 0 होता है ये भी correct. Cos 0, 1 होता है ये incorrect. Cos 0, 1 होता है. Cosecant 0 होता है 1 by sin 0. 1 by sin 0. 1 by 0 which is not defined, तो ये भी incorrect है. Secant 0 होता है 1 by cos 0. 1 by 1, तो 1 secant 0 1 होगा, तो ये भी incorrect. तो CDE these three are incorrect. ठीक है जी. Question number 62. At what time between 5 and 6 o'clock are the hands of a clock coincides? तो relative speed का concept, clock, this is 12, this is 6, this is 5. 5 o'clock पे मिनट हैंड 12 पे और आर हैंड 5 पे. ये एंगल कितना होगा? हर आर में, in every hour an hour hand creates a 30 degree of angle. So ये कितना हो जाएगा? ये 150 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है. अब क्या है? रिलेटिव स्पीड की बात भी करनी हमें. रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड. आर हैंड, मिनट हैंड होता है 6 डिग्रीज पर मिनट और आर हैंड होता है हाफ डिग्रीज पर मिनट. तो रिलेटिव स्पीड इज 6 minus half which is 5.5 which is 11/2 डिग्रीज पर मिनट. ये इनका रिलेटिव स्पीड है. तो अब मिनट हैंड को आर हैंड को कैच करना है बिकॉज कोइंसाइड करवाना है. तो कितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में? 150. 150 distance to be traveled with the relative speed of 11/2 which means 300/11. ये 2 ऊपर चला जाएगा. So 11 2s are 22, 80, 11 7s are 77, 3 27 3/11, 27 3/11 minutes past 5. Yes, this will be the correct answer. Between 5 and 6 the hands of a clock coincides at 27 3/11 minutes past 5. Yes, this is the correct answer. Question number 63. An article having cost price rupees 80, cost price is rupees 80 excuse me, and sold for 68, selling price is rupees 68. The loss percent is, loss percent, तो 80 पे खरीदा 68 पे बेचा. Loss is 12 and loss percentage, profit percentage always calculated on the cost price. 12/80 into 100. So 4 into 3, 4 into 20, 20 into 5, 3 5s are 15% का loss है जी. 64th question. How many lead shots each 3 cm in radius can be made by melting a solid cuboid of dimensions 9, 12, 9, 22 and 12. So volume of the solid cube पहले find करते हैं. Volume of the solid cube will be length into breadth into height which is 9 into 22, 9 into 22 into 12. ये वॉल्यूम है. इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक लेड शॉट के वॉल्यूम से. लेड शॉट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. लेड शॉट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 pi r cube and volume of hemisphere होता है 2/3 pi r cube. So we need to use the volume of the sphere. तो volume of sphere is 4/3 pi r cube. So volume of cuboid से, let's say there are n lead shots are created. So 4/3 pi r cube is the volume of one lead shot into n. This should be equal to the volume of the cuboid. ठीक है. तो ये मेरा आंसर है जी. क्लियर है. सो n का वैल्यू आ गया 9 into 22 into 12 डिवाइड बाय 4/3 into पाई होता है 22/7. गिवन भी है. r cube 4/3 pi r cube and radius of lead shot is 3.
3 तो इसको सॉल्व करना है। अब देखो मैंने पहले 9 into 22 into 12 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, कैलकुलेशन में हमेशा लास्ट में करता हूँ बिकॉज काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 3 into 3 is 9, ये कैंसिल हो गया, 4 into 3 is 12, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा ये 22 कैंसिल हो गया, तो 3 into 7 21, ये ऊपर आ जाएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली 21। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी इट बिकम्स वेरी इजी। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एट द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 65, a train leaves Delhi at 4:10 p.m. and reaches Aligarh at 7:25 p.m. कितना टाइम लगा टोटल? So 4:10 to 7:10 is 3 hours and then 15 minutes extra. So 15 minutes को hours में कन्वर्ट करते हैं, 15 by 60, 1 by 4 hours. So 1 by 4, 3 4 से 12 plus 1, 13 by 4 hours. So कन्वर्ट कर लिया hours में, टोटल टाइम इतना लगा। The average speed of the train is 40 km per hour. What is the distance from Delhi to Aligarh? So average speed का फॉर्मूला होता है total distance by total time. So total distance will be average speed into total time. Average speed given है 40 and total time is 13 by 4, which means 13 into 10, 130 kilometer is the correct answer. Question number 66, find the compound interest on 1,25,000 for 9 months at 8% per annum compounded quarterly. एक तरीका है फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस आर। अब 8% पर एनम है, विच मीन्स 12 मंथ्स का 8%, 1 मंथ का 8 by 12%। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब अब 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, है ना, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, सो 3 मंथ्स एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 8 by 12 into 3, which is 2% per quarter. So 1 plus 2 by 100, और 9 मंथ्स का मतलब 3 मंथ्स के 3 क्वार्टर्स, 3, तो 3 बार कंपाउंडिंग होगा। सो आंसर इज 1,25,000, 102 by 100 raised to power 3. दिस इज अमाउंट। इसमें से मुझे प्रिंसिपल, अमाउंट में से मुझे प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 1,25,000 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कैलकुलेशन वाला, ठीक है। दूसरा वे है, कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाला। दूसरा तरीका है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो मैंने काफी क्वेश्चंस में पहले भी वीडियोस में समझाया है। सो आर प्रिंसिपल इज 1,25,000, ठीक है, 8% पर एनम है, एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% निकल के आएगा, तो पहले इसका 2%, इसका 2%। अब 1,25,000 का 1% निकालना बहुत आसान है, 1250, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2% आएगा, विच इज 2500। तो 2500 पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट। अब इन दोनों को ऐड करके पहले क्वार्टर के बाद ये अमाउंट बन जाएगा, उसका 2%, विच मीन्स इसका 2%, क्योंकि टोटल होगा ना, तो इसका 2% और इसका 2%, तो इसका 2% कितना आ जाएगा, फिर 2500, और इसका 2%, 2500 का 1% इज 25, ये देखो 2500 का 1% इज 25 एंड 2% इज 50, तो 50 और ऐड हो जाएगा। अब सेकेंड क्वार्टर के बाद ये सारा ऐड होके अमाउंट बनेगा। अब इसका इंटरेस्ट का मतलब इसका 2%, विच मीन्स 2500, इसका 2%, विच मीन्स 50, इसका 2%, राइट, ऐसे होगा ना सारा, इसका 2% which is 2500, इसका 2% which is 50, इसका 2% is 50 again, and finally 50 का 2%, 50 का 1% is 1 by 100 which means half, और 2% will be 1 और ऐड हो जाएगा। तो देखिए अब क्या क्या ऐड करना है, ध्यान दीजिए, मुझे प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, मुझे इसको ऐड नहीं करना, तो 2500 plus 2500 plus 2500, this is 7500 plus 50 which is 150 plus 151, which becomes 7500 plus 100 is 7600, 7651 is the correct answer. Second option is the correct answer. ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67,
If A plus B plus C is 6, AB plus BC plus CA is 10, then the value of AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC. तो दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होंगी, ये दो आइडेंटिटीज है, A plus B plus C का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, और AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे A प्लस B प्लस C की वैल्यू चाहिए, वो तो है, और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी, और ये भी। लेट्स डू इट। सो पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करते हैं। A प्लस B प्लस C 6 का स्क्वायर इज 36, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नहीं पता है, AB प्लस BC प्लस CA पता है, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, 2 इंटू 10 इज 20, तो 36 माइनस 20 इज 16, सो आई गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज 16। चलिए अब तो हो गया, A प्लस B प्लस C इज 6, ये पता है मुझे, इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज 16, माइनस, यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो AB प्लस BC प्लस CA आएगा, और AB प्लस BC प्लस CA 10 है, 10, तो 6 इंटू 16 माइनस 10 है 6, 6 6 36, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ये दो आइडेंटिटी याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, 6 years ago, A's age was 18 times the present age of B. B is 2 years younger to C. If C's present age is 5 years, then what is the present age of A? ठीक है, तो C's present age is 5 years. ओके, बैक चलते हैं। B is 2 years younger to C, तो B छोटा है, B is 2 years younger, which means 5 minus 2, B की एज प्रेजेंट 3 years, ठीक है। Now 6 years ago, A's age was 18 times, तो 6 साल पहले, तो अगर A की प्रेजेंट एज A है तो 6 years ago A की एज होगी A minus 6. 6 years ago A's age was 18 times the present age of B, and B's present age is 3. So A is 18 3s are 54 plus 6, which is 60. So present age of A is 60 years. This is the correct answer. Question number 69. In the figure ABCD is a square. Area of the shaded portion is. तो area of shaded portion निकालने के लिए पहले मैं complete area find करूंगा स्क्वायर का, और ये दो ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर दूंगा। तो स्क्वायर की साइड 12 गिवन है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 12 स्क्वायर विच इज 144। इसमें से माइनस करना है, पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया ये वाला, सो इसका बेस है 5, ये 90 डिग्री होगा बिकॉज स्क्वायर है, और हाइट है 12, सो हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज 30 माइनस करना है, 144 में से 30 माइनस करना है, विच बिकम्स 140। चलिए अब ये माइनस करना है, कंप्लीट ये कितना है 12, ये है 4, तो ये हो गया आपका 8, कंप्लीट है 12, ये है 6, तो ये बन गया 6, तो ये एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, विच मीन्स हाफ इंटू 6 इंटू 8, ठीक है जी, विच मीन्स 24। तो 140 में से 24 भी माइनस कर दो, 140 में से पहले 4 माइनस करते हैं तो 110, फिर 10 माइनस करते हैं 100, फिर 10 माइनस करते हैं 90, सो माय आंसर इज 90 स्क्वायर यूनिट्स, 90 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द circumference of a wheel of a car is 4 2/7 meter. Circumference perimeter is 4 2/7, which is 7 for 28 plus 2, 30/7 is the circumference. It makes 14 revolutions in 2 seconds. So in 2 seconds, 14 revolutions means 14 into 30/7, 60 meter in 2 seconds. So in 1 second, 60/2, which is 30 meters. So 30 meter per second. Speed of the car is 30 meter per second. Third option is the correct answer. So 70 questions quant, 20 questions reasoning, 90 questions, 10 questions और डिस्कस करेंगे। Stay tuned
Till the next video, thank you. God bless.